गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने जीएसटी के बारे में कुछ जाना था कि व्हाट इज़ दिस जीएसटी ऑल अबाउट, व्हाई जीएसटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाई देयर इज़ सच एन ह्यू एंड क्राई, everybody is so pessimistic, everybody is so enthusiastic for GST, everywhere there is a talk about GST. तो ऐसा क्या था जीएसटी में जो हमने लास्ट सेशन में देखा। इस सेशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का, पूरे जीएसटी का, वो है जीएसटी ट्रांजिशन प्रोविजंस। ट्रांजिशन प्रोविजंस मीन्स के लाइक प्रेजेंट रिजीम से जीएसटी रिजीम में जाने के लिए क्या 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 ऐसी इश्यूज हैं, क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं, वी शुड गेट इनटू इट एंड अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से हमें एग्जिस्टिंग सेशन से स्मूथली हम जीएसटी में ट्रांजिट कर जाएं। दैट इज अ ट्रांजिशन प्रोविजंस। बिफोर गोइंग इनटू दिस ट्रांजिशन प्रोविजंस, first we will try to recap what we have done in our last session so that we can be in line with how where we are and how we will move, and just to give a thing like okay, here we are and here we have to move. तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया था कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि जीएसटी इज नॉट complete without the definition of supply, because this is a subject matter of GST. and इसके अलावा एक important aspect और हमने discuss किया था in detail, what is the difference, what is the comparison between the present regime and the GST regime. So because otherwise this transition session is to be taken in the last, unless we are knowing the very important concept which are there in the GST, it is not good to discuss the transition provisions. but ये हमारे लिए एक important इसलिए बन गया क्योंकि अभी ये हमारा जो सेशन है ये जून में जाके एंड होगा, and we are talking transit in GST in July itself. सो अगर हम जुलाई तक की, जून तक की वेट करते हैं इस सेशन के लिए तो बड़ा अनजस्टिस हो जाता है एंड हम प्रिपेयर नहीं कर पाते जीएसटी के लिए। तो इस वजह से मैंने सेकंड सेशन में ही ये लिया जानबूझ के, सो दैट वी आर एबल टू प्लान आवर फॉर अस और फॉर आवर क्लाइंट्स। बट डेफिनेटली इट्स माय ड्यूटी कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस ट्रांजिशन प्रोविजंस आई शुड डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आर डिफरेंट in the present regime as compared to the GST regime. So friends, सबसे पहली important चीज जो हमने last time discuss की थी कि levy under the present regime and levy under the GST regime. Levy means chargeability of tax. तो chargeability of tax के लिए just I will take 15 minutes, then we'll come on the transition provisions. So the chargeability means the levy under the present regime. There are three incidences of levy. One is on manufacture, second is on trade, sale of goods, and third is on provision of services. In all these cases, the levy is on a different time, which we have discussed in the last program also. Keep on manufacture, we are supposed to, the levy is there on the manufacture of goods, is to be paid at the removal of goods. You must be knowing this concept. The second is sale of goods. The levy is on the sale of goods. And the third is the provision of services. Third is the provision of services. So the levy is on the provision of services from provider to the recipient. So there is a point of taxation rule for that. But in GST, the levy is a single levy, and there is no manufacturing, there is no trading, there is no provision of services. Goods and services is combined together, and the levy is on the combined levy on supply of goods and services. We have also discussed the definition of what is there into the goods and what is there into the services. तो
सप्लाई का भी हमने डिस्कस किया था। तो एक कंसेप्ट तो हो गया कि लेवी मेरी चेंज होगी, कि लेवी कहां से कहां थे हम। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा कि दे आर मल्टीपल टैक्सेस इन द प्रेजेंट रिजीम levied by the center as well as levied by the states. So all these taxes subsumed into GST. So now there is only two taxes, or broadly we can say there is only one tax. We called it a GST. But it is further divided into two parts because of the central states part. They will call it a dual GST. So that is a central GST and the state GST. So this is, and for interstate transfer there is a concept called IGST, which we have discussed in detail in the last meeting. And the next important definition of levy is the valuation. You know friends, अभी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के बेसिस पे, दे आर मल्टीपल रूल्स ऑफ वैल्यूएशन. कुछ एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन है, कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशन है. वैल्यूएशन में कुछ डिस्काउंट आते हैं, कुछ आपने लेट फीस लगा दी, वो अभी चार्जेबल नहीं है ट्रेडिंग के टाइम पे. कुछ आइटम्स हैं जो एड वैलोरम ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्सेबल है. तो वैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच डिफर्स इन जीएसटी एज कंपेयर टू द existing regime. It is a sea change in the valuation provisions. So for this purpose we will just discuss this in a forthcoming session. But as of now we just understand two things. One is if the valuation, the consideration is the sole price, the price is the sole consideration, then valuation is on the transaction value. जो भी transaction value हम कर रहे हैं, अगर price is the sole consideration of dealing with this thing, तो then price, this valuation is it on transaction value. अब transaction values में भी इन्होंने ये कहा है जीएसटी में, there are certain things which is included, there are certain things which is excluded. You must have heard so many things about discount thing. Valuation के point से आपने discount के लिए देखा था, तो वैल्यूएशन के लिए आपने डिस्काउंट में देखा था कि भाई डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो जीएसटी में इट इज चार्जेबल टू टैक्स. बट व्हेन इट इज चार्जेबल टू टैक्स एंड व्हेन इट इज अलाउड, इट इज कवर्ड अंडर वैल्यूएशन. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट इज द वैल्यूएशन इज एन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, which was not there earlier in the existing regime, is not there in the existing regime. This is a concept which is going to hit so many enterprises, common directors, common shareholders, interest, they are the related parties, and supply between these two parties. How will make the supplies? On the fair market valuation. So the concept of transfer pricing, which was there in the Income Tax Act, is there in GST, and that is really a very important thing which is there in the indirect taxation system. And you know, earlier there are two entities which we are discussing, like branch and factory. Transferring goods to the branch is not chargeable to tax. In the existing regime, transferring goods from principal to agent, agent to principal, in the supply definition, which schedule 1, without consideration, transaction between the entity with the branch, transaction between the principal with the agent, they are chargeable to GST. So we need to just remember this thing, recap this thing while we are discussing this transition provisions, and this is going to hit in so many things into this thing. So presently there are so many forms. When we'll make supply under inter transfer, there is a C form. When we'll make supply to export, it is H form. Inter branch transfer, we'll call it a F form under the CGST Act. And there will transfer to the SEZ, there is an I form. There is applicability of declaration forms, so many declaration forms. So are they going to continue in GST? They are not going to continue in GST. So what will happen to those forms? How will transit? So we need to understand this is a difference. Registration.
What is the provision for registration in today regime? For a manufacturer, if he is in factory in same state, multiple factories, so how the registration will be done? Every factory, there is a registration need to be taken. Every premises, registration need to be taken. But now, one state, one registration. One state, one registration. And though in one state there can be multiple registration, but in a different situation when there is a segment, vertical segment and all those things. But in service tax, right now, what is the concept of registration? You can take centralized registration and you can take single registration, independent registration for different entities. So right now is centralized registration in GST regime, there is no centralized registration. So how the somebody here is in here is a centralized registration, and after GST when we take registration for each entity which are providing services, then how will carry forward this credit and all those things? So there is levy, there is a tax, there is a valuation, there is a registration. All those things make impact. There is a transfer of goods between branch and agent and principal, and all those things are very, very important to understand job work. Job work more or less in the present regime and the GST regime, the job work is more or less similar. We will discuss in detail what will happen. And registration we have already discussed. Composition, in the present regime we are in composition. In the GST regime there is a concept of composition also, but that is an entirely a different concept. So composition in the present regime, getting into the GST regime, with or without composition, we have to see what are the impact on this. There are rates, there are multiple rates in the present regime, so many rates, VAT, etc., etc. There are around 150 rates for goods and services. So right now in GST, how many are the rates? 5 rates. So this is also change. Forms we have discussed, and there is a concept called EOU, supply to EOU, STPI, export zone, whether they are going to get some benefit in the GST regime. They are not going to get any special benefit which is available to only SEZ, not to this STPI, SEZ and all those. Minimum exemptions, obviously, because more and more products will come under GST. And friends, one important thing, right now, the basic exemption limits, how this basic exemption limit is working, for manufacturing less than, how much is the limit? 150 lakhs. For excise, for a manufacturing company, limit is 150 lakhs exemption. And in GST, only 20 lakhs. So these persons who are claiming exemption up to the limit of 150 lakhs, it will reduce to 20 lakhs. So all these 40-50 lakhs people will come into GST. What will be the impact on those things? We will see in a transition provisions. I am just recapping certain things which you will appreciate at the time of when we'll discuss the transition provisions. And there is a concept of forward charge. Normal forward charge hota hai taxation ka, but concept of reverse charge only in service tax. There is no concept of reverse charge under manufacturing or manufacturing and sale of goods. But it is there in GST. The reverse charge is there in the supply, because there is only one levy. So reverse charge is there, forward charge is there, the lateral charge is also there. Lateral charge means deducting tax, collecting tax at source. So this is something somebody is collecting, and then the other person is like the income tax. It is also there in some of the state VATs, but it's not there in excise duty. So these are basically the input tax credit. You know friends, the input tax credit का एक बड़ा important concept है
कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की सैंडविच क्रेडिट रूल्स की बात करते हैं प्रेजेंट रिजीम में, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स इज अवेलेबल टू एवरीवन who is providing both taxable and non-taxable supply. There is no proportionate reversal on this, on the input on capital goods. But in GST, this input on capital goods is also come into a kitty where there is a proportionate reversal of non-exempted supplies. So this is a very important concept while we will discuss the ITC, input tax credits. So just to These are the basic differences जो अभी हमने डिस्कस किए कि लेवी के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, कंपोजिशन स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनको एक बार रिकैप करके इसके साथ में देन विल ट्राई टू गो फॉरवर्ड विद द ट्रांजिशन प्रोविजंस. ओके, आर यू विद मी? परफेक्ट. सो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस क्या होने चाहिए? क्यों ट्रांजिशन इतना इंपॉर्टेंट हमें लगता है? इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन बिकॉज दिस इज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानिंग. इट इज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानिंग. ट्रांजिशन, somebody must have experienced the transition of sale tax, state tax to sale tax to VAT, state VAT. So there are certain things the present regime is to be in the indirect tax is to be taken into the proposed regime indirect tax में. So indirect tax में सबसे important aspect क्या है? और particularly जहां value addition tax होता है, the game of credit. So maximization and optimization of credit which are available you today, whether those credit will be available to you in the GST regime or not. The credit which are available to me, am I able to carry forward those credits in the GST regime? Because it is a cash. Credit is a cash. Credit balance with us is a cash which we have to pay on our output tax liability. We can adjust it with the input tax. So the main important aspect is how to maximize, how to understand what are the credit eligible to me is going to be eligible to me in GST also. And the other aspect, what are the things which I am not eligible now, क्रेडिट अभी मेरे को एलिजिबल नहीं है क्योंकि मैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं. अगर मेरी चीजें जैसे आपने कहा था मिनिमम एग्जेम्पशंस, मैक्सिमम टैक्सेबिलिटी, इंटरस्टेट ट्रांसफर्स, अगर मेरे को क्रेडिट आज मैं कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, कल वो मेरा गुड्स टैक्सेबल हो जाता है, तो क्या जो मेरे पास स्टॉक अभी हैं, ऑब्वियसली जब मैं उनको बेचूंगा तो ऑब्वियसली मैं जीएसटी लगा के बेचूंगा जब कैरी फॉरवर्ड करूंगा. So when I will sell those, I will pay output tax liability. So how I will take the input tax credit on those items which I am not eligible right now? Which I am not eligible right now. How those credit will be carried forward? What about the other credits also? So the first aspect is the credit optimization. The second aspect, like we have discussed, in GST regime, supply from one branch to another branch is a taxable supply, but presently it is not. So what will happen in the future? So whatever stock there is with the branch, either I have to, it should be make supply, or I have to get it back. Obviously I have to get it back, then supply further to see कि वो branch में input tax credit claim कर ले उसके. अगर वो नहीं आया उनके पास में और उन्होंने सप्लाई किया उसको जीएसटी रिजीम में, तो यू नो इन जीएसटी रिजीम द ब्रांच विल चार्ज जीएसटी ऑन इट. तो एजेंट प्रिंसिपल का भी इसी तरीके का मैटर है कि एजेंट और प्रिंसिपल में आज की डेट में देयर इज नो सप्लाई, देयर इज नो सेल. गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. But in the GST regime, it is chargeable to tax. We will see. I am just contemplating certain situations.
so that when we'll reach into the provisions, we can just remember those provisions, what is that those provisions about. So friends, the GST transition and introduction of law. What is law all about? For the GST, this GST transition law is a one-time transition activity which will be used at the time of transition only, and after the transition is complete, this law is over. And अभी पिछले 6 महीने से जितना भी डिस्कशन हो रहा है, मोस्टली एवरीवेयर दिस डिस्कशन इज हैपनिंग ऑन ट्रांजिशन. क्या रह जाएगा, क्या ले जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे, किस तरीके से टैक्सेबिलिटी होगी. अभी तो ये करते हैं, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या वो जो आज अवेलेबल है वो पूरा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा. एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग, वेरी क्यूरियस. अगर मिल पाएगा तो कैसे प्लान करें, कुछ है कोई प्लानिंग अपॉर्चुनिटी इसके लिए. फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सो मेनी प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि एक सिचुएशन में आप ले सकते हो, अगर उसी को आप ठीक से नहीं कर पाते तो आप नहीं ले सकते. अगर ट्रांजिशन प्रोविजन में वन टाइम में अगर आपने कोई क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं किया तो लॉस्ट फॉर एवर. सो इट्स अ कैश लॉस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मेरे को किसी ने पूछा कि मेरे पास यहाँ कैपिटल गुड्स है, अपनी ब्रांच के पास ट्रांसफर कब करूं, अभी करूं कि बाद में करूं. एक ट्रेडर को बड़ी चिंता लग गई. ट्रेडर कहने लगा, भाई मैं तो बहुत, मेरा तो मतलब लाइक आई एम डीलिंग इन मेटल and there is a high amount of excise involved into this, but when I purchase from somebody else, so it is not, I am not getting an excisable invoice, so I am getting only a VAT invoice. So the excise duty component into that, into his purchase, which is there in the stock at the time of transition of a trader, whether he will be entitled to take credit of what, VAT का तो वो ले ही रहा है ना अभी भाई. वैट तो वेटेबल बिल का वैट का उसने क्रेडिट ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्साइज कंपोनेंट विच इज हाइट बिहाइंड द बेसिक वैल्यू, बिकॉज उसको उसने पे तो किया है ना वो, और स्टॉक में भी पड़ा है उसको. अगर स्टॉक में एक्साइज कंपोनेंट पड़ा है तो ही शुड गेट क्रेडिट ऑन इट, लेकिन हाउ ही शुड गेट क्रेडिट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. we will go step by step in a provision. So friends, my point is, wherever you have a problem, the objective of this workshop is basically to understand and complete. There should no confusion in any mind. Whatever is a confusion we can discuss at any moment of time. कभी भी बीच में रोक के हम डिस्कस कर सकते हैं. यही इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है. सो लेट अस मूव. जीएसटी ट्रांजिशन प्रिपेयर्डनेस, क्या प्रिपेयर करना है हमने, क्या डूज हैं हमारे, व्हाट वी मस्ट डू. ट्रांजिशनल चैलेंजेस क्या होंगे. सबसे बड़ा चैलेंज तो लोगों ने सोचा है ना, क्या होगा सबसे बड़ा चैलेंज है जी, क्या होगा सबसे बड़ा चैलेंज, सबके दिमाग में है. एनीबॉडी कैन एलैबोरेट. सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्या हम कर पाएंगे, कैसे होगा, क्या आईजीएसटी है, कहां से मूव करेंगे. आईटी सिस्टम घर में नेट चलता नहीं है, 4G फेल हो गया. क्या वेदर दीज एसएमईज, 40 lakhs SMEs are working under this exemption schemes. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, राजीव जी बताएंगे, बहुत सारी वर्कशॉप हैं, उनको कंप्यूटर तो दूर दूर तक देखा ही नहीं है उन्होंने. घर में बच्चे चलाते होंगे अलग बात है, लेकिन कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है. उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि हाउ दे विल हैंडल इट. 1 करोड़ 50 लाख, देयर इज नो टैक्सेशन, कोई झंझट ही नहीं है. 20 लाख के बाद में करना है. सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आईटी जीएसटीएन की बात कर रहे हैं. अभी हम बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं, हर जगह प्रॉब्लम है. मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है. समीर जी कह रहे होंगे, यार तुम पहले अपना तो निपटाओ. मतलब वी हैव टू माइग्रेट, बट हाउ वी हैव टू माइग्रेट. द सिस्टम इज नॉट कपल्ड विद. क्वेश्चनेयर इशू किया सीबीएसई ने, उस क्वेश्चनेयर में क्या बोला है कि यू कैन रेफर टू द हेल्प डेस्क. नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है. Have anyone is experience of getting the answer from the help desk? Not at all. So what is the challenge? अभी जो
चैलेंज है सबसे बड़ा, हेल्प डेस्क मतलब FAQ डाला है और FAQ में आंसर देने की जगह कह दिया है कि वहां से पता कर लो। वेरी स्ट्रेंज फ्रेंड्स, IT is a very big challenge. We will see other challenges also. So transition challenge, and the most important is the planning. Obviously जहां challenges हैं तो अपना इंडिया में प्लानिंग की तो पूरी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। भाई चैलेंज है तो उसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, रीस्टार्ट कर लो, कुछ कर लो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो ले लो, फिर देखेंगे। भाई क्रेडिट तो लेना है, ले लो फिर देखेंगे। ज्यादा मांग लो, क्या नुकसान है, कल को कह देंगे भाई पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज है, प्रिपेयर्डनेस हमें क्या करनी है। ये सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स कि इस सेशन के बाद में मेरे को लगता है कि हम सब लोग अपने अपने ऐसे कामों में लग जाएंगे। प्लीज ट्राई टू फोकस सर्टेन थिंग्स कि जो अभी आप सोच रहे हो, अपने बिजनेस के लिए सोच रहे हो, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए सोच रहे हो, जब भी आप इस सेशन में हम आगे जैसे बढ़ेंगे, आप प्लीज ट्राई टू इन कनेक्ट विद योर क्लाइंट्स कि उस क्लाइंट का क्या है। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके केस में मैंने देखा कल बैठे बैठे जब मैं पढ़ रहा था ये प्रोविजंस, एक बार कई बार पढ़ लिए थे, जब मैं पढ़ रहा था और मैंने कहा यार तो वैल्यूएशंस में हिट हो जाएंगे। 10%, 50%, 25% की शेयर होल्डिंग है, कॉमन डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम आपस में टर्नओवर है, वैल्यूएशन में हिट हो जाएंगे। हाउ विल कैलकुलेट? अभी बड़े परेशान है। अभी तो ये होता था यार एक काम करो, इस बार 35 रुपए कर दो, अगली बार प्रॉफिट कम ज्यादा हो गया, इस बार 40 रुपए कर दो। How will do it? So when we'll forward this provisions, please keep your client into your mind, please keep your issues into your mind. So let's friends start with the transitions. So friends, सबसे पहला issue is the migration. अभी क्या हो रहा है, सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी, रोक दिया। वही पहले एनरोलमेंट करा दो तब सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करने देंगे। अरे भाई यूजर आईडी पासवर्ड तो दे दो, यूजर आईडी पासवर्ड तो दे दो। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करने दे रहे, एनरोलमेंट करा लो। भाई कैसे करा लें एनरोलमेंट? कोई लीगल एंटिटी है आपके पास में, कोई सेंसिटी है आपके पास में, कैसे करा लें? हाउ कैन यू स्टॉप इट? वेयर इज रिटन इन द GST? क्या एनरोलमेंट कराना मैंडेटरी है? इट इज नॉट मैंडेटरी फ्रेंड्स। GST में जो माइग्रेशन के प्रोविजंस हैं, जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो क्या कहता है? एक बार लेट अस सी इट। ऑन और फ्रॉम द डेट और फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, नॉट बिफोर दैट। ऑन और फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, every registered person under the earlier law having a valid PAN will be issued a provisional registration certificate. कहां है एनरोलमेंट इसमें? माइग्रेशन कहां है इसमें? अभी तो ना तो अभी एप्लीकेबल हुआ लॉ, हाउ कैन ही इंपोज ऑन सच थिंग्स? सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे। मेरे क्लाइंट के पास फोन आया कि सर वो हम आपके पास अभी आ जाएंगे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से, तो अगर आप माइग्रेशन नहीं कराया अभी आपने, और मतलब उसका क्लाइंट का फोन आया, वो कहते हैं वो धमकी दे रहा है। मैंने कहा मेरे को दो नंबर, जब मैंने उससे बात की, बोले सर कुछ नहीं था सर, वो प्रोविजनल आईडी आ गया था, प्लीज आप मंगवा लो उससे। तो सभी को कर रहे हैं, मतलब हाउ दे आर डीलिंग विद। सो whether this transitions will be a smooth ride or not, we have to experience it, we should know it, we should educate our client. मैंने अपने क्लाइंट को कहा इस तरीके का किसी का कोई फोन आए, कह दो भैया जो तेरे से हो सके कर ले। यार व्हाट द हेल? सो आई मीन ऑन और फ्रॉम द अपॉइंटेड डे वैलिड पैन इंपॉर्टेंट है, अभी भी है, बाद में भी है। अभी क्या हो रहा है कि अभी एनरोलमेंट के लिए भी क्या हो रहा है कि कई क्लाइंट्स के पैन में इश्यूज हो सकते हैं, तो उनकी प्रोविजनल आईडीज क्रिएट नहीं हो रही हैं, क्योंकि पैन के इश्यूज हो सकते हैं, प्रोविजनल आईडीज क्रिएट नहीं हो रही हैं। इन हाउस इतने ज्यादा इश्यूज हैं क्योंकि उनको मतलब बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम इज नॉट गियर्ड अप फुली विद दिस प्रॉब्लम्स। भाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना वालों को आंध्र प्रदेश के इशू कर दिए सारे। आंध्र प्रदेश वैट डिपार्टमेंट ने तेलंगाना वाले जितने भी लोग थे डीलर, उनको इशू कर दिया। वो कहते हैं हम तो तेलंगाना में।
कहते भाई तेलंगाना के इशू कर देंगे, इनको छोड़ दो। मतलब ऑल दिस इज हैपनिंग, दिस इज very 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 very, you know, they are not taking it very seriously. But as far as GST is concerned, friends, the transition is very very clear. Only the law becomes applicable, then only you have to migrate into GST, and the existing registration holder will after submission of certain document will be issued a provisional registration certificate. Yes. हाँ जी, हाँ जी। आई विल डील इट। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं अभी। अगर 1 मिनट दे दो, हो सकता है क्लियर ही हो जाए आपका क्वेश्चन। तो पहली चीज तो होगी सिंपल प्रोविजंस। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होल्डर और रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर existing registration person under the state acts or under any of the provisions of the central act, excise duty, central excise duty, customs, wherever which are subsumed into GST. So there are only 2 places, central taxes के लिए और VAT के लिए। अगर कोई registered taxable person है, he need to get the provisional registration certificate by filing certain information documents with the साइट, ऑनलाइन लेना है अपने। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि जो आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। जो आज की डेट में रजिस्टर्ड एसएससीज नहीं है, नीदर अंडर द सेंट्रल एक्ट नॉर अंडर द स्टेट एक्ट, दे नीड नॉट टू गो टू गेटिंग दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो व्हाट फॉर दे विल गो? दे विल गो फॉर द fresh registration, when the fresh registration window will open on or after the appointed day. Clear? So बताएं। हाँ जी, he will get two provisional registration, one at the center, one under the central act and one under the, देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हम कहते हैं कि वन टैक्स ऑल इंडिया या वन टैक्स वन नेशन। सर ये नहीं है, आप भूल जाओ, वन टैक्स वन नेशन नहीं है ये वन टैक्स वन स्टेट है। वन टैक्स वन स्टेट है। हर स्टेट की वजह से, फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से, दे आर सो मेनी थिंग्स। 80% ऑफ द प्रॉब्लम विच वी विल सी के यार व्हाट वी आर डूइंग वेरी स्ट्रेंज थिंग्स इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द मल्टीपल स्टेट्स, द फेडरल स्ट्रक्चर, एंड वी हैव टू बियर इट बिकॉज दे पीपल नीड्स इंडिपेंडेंस। उनको अपने फंड्स चाहिए थे इंडिपेंडेंटली स्टेट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कन्विंस नहीं कर पाई। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि वेट में रजिस्टर्ड है, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उसको सेंट्रल एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और स्टेट एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ललित जी आप कुछ कर रहे थे? हाँ, 10 लाख नहीं आ रहा अभी। उसको ही लग रहा है कि मेरा टर्नओवर प्रेजेंट में 10 लाख नहीं आ रहा, फ्यूचर में 20 लाख नहीं जाएगा। खास तौर से जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इन लोगों का चलो कैश में जो भी इनकी इनकम्स होती हों, लेकिन वाइट में इनकी बिलिंग हो ही नहीं रही है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स कह रहे हैं भी हमारा सर्विस टैक्स सरेंडर कर दो। मेरा पॉइंट ये सिंपल सा है कि जो मैं अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि अगर मैं इसका सर्विस टैक्स सरेंडर कर दूं और जीएसटी में माइग्रेशन ना कराऊं, इट इज़ ओके। लेकिन कई जगह से मुझे कॉन्फ्लिक्ट व्यू भी मिलता है कि नहीं, आपका एग्जिस्टिंग है तो आपको माइग्रेट कराना ही पड़ेगा। देखो जो आपका व्यू है ना, सेकंड लाइन है, अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है आपका, वेदर यू आर चार्जिंग टैक्स इवन हैविंग रजिस्ट्रेशन विदाउट इट, और यू आर नॉट चार्जिंग टैक्स, रजिस्ट्रेशन आपके पास है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू नीड टू माइग्रेट एंड गेट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन एनी सर्कमस्टांसेस इफ यू आर अ प्रेजेंट रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। और अगर मैं अभी सरेंडर कर दूं तो? अगर सरेंडर कर दो देन इट्स ओके। नहीं वो, हाँ, ओवरऑल इट इज लेस देन 20 lakhs। सर मेरा लास्ट पॉइंट इसी से है कि अगर मैं एक बात इनकी कंप्लीट करके फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं
कि अगर मेरा आज की डेट में मेरा टैक्सेबल टर्नओवर, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, और कम है, 10 लाख की लिमिट है, मेरा 8 लाख है, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास में, मेरे को कभी नहीं जाना 20 लाख से ऊपर, तब भी माइग्रेशन कराना है मेरे को। और नहीं, नॉट माइग्रेशन की वो उन्होंने डाला है, वो जो भी मर्जी है, लॉ में जो लिखा हुआ है, लॉ ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन इन द प्रेजेंट टैक्स रिजीम वेदर इन द सेंट्रल टैक्स और विद द स्टेट टैक्स इज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन द जीएसटी एंड गेट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया उसने, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एक एप्लीकेशन डाल दे इसके कैंसिलेशन के लिए, लेने के बाद में एप्लीकेशन डालेगा कैंसिलेशन के लिए, जिसमें यह माना जाएगा कि दिस रजिस्ट्रेशन, दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन इशूड एट ऑल। लिखा सर, एक्ट में लिखा है सर। नहीं, हाँ, सब सारे फॉर्म्स आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, सारे फॉर्म्स आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन भी आई हुई है, सब कुछ आया हुआ है। When should we file the cancellation application? Eh? When should we file the cancellation application? As soon as the law becomes applicable. After 1st July. जैसे आपका लॉ एप्लीकेबल हो गया, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली ले लिया, और उसके बाद में आपका टर्नओवर वैसा नहीं हो रहा, तो आपके पास में एक टाइम लिमिट है, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, वो टाइम लिमिट रूल्स में लिखी हुई है। तो उसके बेस में आप एप्लीकेशन डाल के उसको, जब एप्लीकेशन डालेंगे कैंसिलेशन के लिए, तो ये माना जाएगा कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे आपका, ये माना जाएगा, इसका इंप्लीकेशन है, मैं बताऊंगा कहां है, ऐसा माना जाएगा कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है अगर आपने कैंसिलेशन डाल दिया जीएसटी रिजीम में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी किसी भी तरीके का पर्सन जो इस सेंट्रल एक्ट में और स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड है, ही नीड टू टेक दी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर दी अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट मतलब जब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात, अगर उसने ले भी लिया, अगर उसने ले लिया और उसको आगे जीएसटी में टैक्सेबिलिटी नहीं है उसकी, तो इमीडिएटली ही हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 6 मंथ। और द गवर्नमेंट कैन, जब गवर्नमेंट पर कुछ ऐसा लगेगा कि भाई हम ओरिजिनल इशू नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस टाइम ऑल्सो। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज कि जैसे ही, और क्या हुआ है कि इन्होंने एक्ट में ये डाला है, आपने कंपनीज एक्ट को एक्सपीरियंस किया था कि 5 सेक्शंस एप्लीकेबल कर दिए 1 जून से, अगले 50 सेक्शंस एप्लीकेबल कर दिए 1 दिसंबर से। तो इस एक्ट में भी इन्होंने पावर ले लिया गवर्नमेंट ने कि भाई पार्ट में, पीस मिल में हम एप्लीकेबिलिटी डाल सकते हैं एक्ट की। तो मेरा आइडिया ये है जब भी एप्लीकेबल होगा तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस 1 महीने पहले एप्लीकेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, क्लियरिटी ये है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया आपने, लेना पड़ेगा आपको अगर आप रजिस्टर्ड हो, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप जब विंडो खुलेगी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन लोगे, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में 6 महीने में, विद इन 6 मंथ आप उसको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप जीएसटी में टैक्सेबल नहीं हो तो आप एक एप्लीकेशन डालोगे, और वो रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो मिला है, दैट विल बी डीम्ड टू नॉट हैव बीन इशूड टू यू। तो व्हाई इट इज सो, मैं वैसे ही एक समझने की कोशिश कर रहा था, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट मेरा पॉइंट ये है कि कल को मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन डाल रहा हूं, सर्विस टैक्स में ऐसा हो ही नहीं रहा। राजेश जी, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है मेरे को, हो ही नहीं रहा। पहले लास्ट रिटर्न डालो, ये रिटर्न डालो, वो रिटर्न डालो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे आर आस्किंग फॉर। मैंने कहा यार ये अच्छा बात है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं और फिर वहां कैंसिलेशन डाल दूंगा, काम खत्म अपना, गंगा नाली है। तो बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो इसमें लिखा है कि डीम टू हैव नॉट बीन इशूड एट ऑल। इसका मतलब जो आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी कैंसिल्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ओनली। रजिस्ट्रेशन पे और किसी का कोई इशू? हाँ, कर गए, then that law is not in force. ओल्ड लॉ तो खत्म हो चुका है, फिर उसमें कोई अथॉरिटी कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को? सर ओल्ड लॉ खत्म नहीं होगा, रिपीलिंग एंड सेविंग प्रोविजंस हर एक्ट में होते हैं। ओल्ड लॉ में अभी तो आप देखो बहुत सारे ये पेट्रोलियम, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज हैं जो अभी भी अंडर दिस एक्ट हैं। तो
इस इन चीज़ों के लिए खत्म मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी असेसमेंट होंगे सर, अपील होगी, रेफरेंस होंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें डिसाइड होंगी तो खत्म नहीं होगा वो रहेगा। हाँ जी सर। एक और माइक ले लो प्लीज, सबको समझ। Within the same state, the VAT registration is there and the central service tax is there. So do we need to apply two registration in case of GST or और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स एक स्टेट में है या मल्टीपल स्टेट्स में है? okay? मल्टीपल स्टेट्स में तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे हर स्टेट में, दोनों जगह। सेम स्टेट में अगर आपको पास सीएसटी है, आपके पास में एक्साइज भी है और वैट भी है, तो दोनों एजेंसीज को, दोनों अलग अलग एजेंसीज है फ्रेंड्स, बी केयरफुल, these are the two different agencies, central agency for central tax and state agency for state tax. Any other query on? Yes. हाँ. We can file for तो PRC. देखो सिंपल है, आप जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो, अगर आपका वेट में रजिस्ट्रेशन नहीं, ऑब्वियसली नहीं लोगे। अगर आपका वेट में रजिस्ट्रेशन, जिसमें भी रजिस्ट्रेशन है, कोई स्टेट टैक्स में है तो स्टेट टैक्स में लेना पड़ेगा, कोई सेंट्रल में तो सेंट्रल में लेना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? यस प्लीज। हाँ हाँ जी। नहीं सर, मैंने ये बोला है कि सेंट्रल एक्ट्स में जहां भी रजिस्ट्रेशन है, एक्साइज में भी है, सर्विस टैक्स में भी है, तो दोनों का एक लेना पड़ेगा आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। नहीं सर, देखो सर, ये जो सर्विस टैक्स है एंड एक्साइज है, दैट इज गवर्न अंडर द सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल लॉ। द वैट इज गवर्न विद द स्टेट लॉ। तो अगर आपके 3 बताए तो आपको 2 लेने पड़ेंगे। एक्साइज के लिए, सर्विस टैक्स के लिए आपको सेंट्रल में लेना पड़ेगा और वैट के लिए आपको स्टेट जीएसटी में लेना पड़ेगा, एसजीएसटी में लेना पड़ेगा। सेंटर में भी ले ली, स्टेट में भी ले ली। हाँ। उसके बाद जो है एक ही नंबर चाहिए ना हमें, तो फिर बाद में हाँ जी उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारी सिंगल सर, होनी चाहिए ना। जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे दोनों भाई भाई साथ साथ चलेंगे, सेंट्रल और स्टेट साथ साथ चलेंगे, एक कभी नहीं होंगे, अकेले नहीं होंगे। जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो दोनों भाई साथ चलेंगे, सी और एस। तो वही वैसे ही रहेंगे सर। वैसे ही रहेंगे जैसे अभी भी चलते थे ना स्टेट एक्ट में, तो दोनों सीएसटी का भी कराना है, वेट का भी कराना है। इसी तरीके से सेम, जैसे दिनेश जी ने कहा कि भाई सेंट्रल का और स्टेट का दोनों लेने पड़ेंगे। नहीं, पेन बेस्ड नंबर होगा, नंबर एक नहीं होगा उसमें, सेंट्रल वाले में नहीं, स्टेट में देखो सर, नंबर एक नहीं रह सकता। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट विल नॉट बी सेम। कोई ना कोई क्लॉज स्टेट का और सेंटर का एक डिजिट लगी होगी उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज सर सीएसटी और एसजीएसटी, सीएसटी की एक प्रॉब्लम है, सीएसटी आप सीएसटी से वैसे कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं कि पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं जीएसटी उसमें, कि हमारे 2 टैक्स साथ साथ चलेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैं कोई एक ट्रांजैक्शन मूव कर रहा हूं, अगर मैं ट्रेडर हूं फॉर एग्जांपल, और ट्रेडिंग करते हुए मैं 1 लाख रुपए का कोई आइटम बेच रहा हूं और उस पर 18% टैक्स में आता है, तो मेरे को कौन सा टैक्स पे करना है? अगर हरियाणा में मैं इंट्रा स्टेट ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसको 9% पे करना है सीजीएसटी, 9% पे करना है एसजीएसटी। दोनों अलग अलग अकाउंट्स में जाने हैं। सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अगर एक ही नंबर होगा? तो नंबर अलग अलग होंगे, सीएसटी एसजीएसटी के नंबर अलग अलग होंगे, स्टेट के हिसाब से होंगे। जब वो नंबर क्लिक करेंगे तो मेरे को पता होगा कि कोई बंदा मेरा हरियाणा का सेंट्रल का नंबर क्लिक कर रहा है, कोई बंदा मेरा हरियाणा का, अगर मेरा वेंडर तो हरियाणा का स्टेट का नंबर क्लिक कर रहा है। कैसे? नहीं, टैक्स के कोड से कैसे पहचानोगे? एक सेकंड। एक बंदा सर कितने नंबर देगा सर अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर को? ऐसा है, अपने कस्टमर को सर जितने नंबर, देखो आज की डेट में भी आप जो हम इनपुट क्रेडिट लेजर की और इनपुट कैश लेजर की बात कर रहे हैं,
वो इनपुट कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में आऊंगा, इनपुट उसमें आएगा मेरा, लेकिन सेंट्रल के लिए अलग होगा। हम एक स्टेट में अगर वर्किंग कर रहे हैं तो एक स्टेट में मेरे को इनपुट कैश लेजर सेंटर का अलग होगा, इनपुट क्रेडिट लेजर सेंटर का अलग होगा, इनपुट कैश लेजर स्टेट का अलग होगा, इनपुट स्टेट लेजर कैश उसका अलग होगा, कैश का स्टेट का अलग होगा। सर लेजर्स अलग होंगे, बट यानी कि व्हेन आई एम रेजिंग अ बिल ऑफ सप्लाई तो उस वक्त फिर मैं अपने दोनों नंबर स्पेसिफाई करूंगा। अभी भी तो आप डालते हो ना सर, दैट्स व्हाट आई एम आप आस्किंग। LST और CGST डालते हो ना अभी भी, आप अपने बिल पे दोनों नंबर डालते हो सर ना। आज की तारीख में टिन चलता है। नहीं, आज की तारीख में टिन चलता है। टिन में जब आप रजिस्ट्रेशन डालते हो, अगर आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो तो हरियाणा में जब डालेंगे तो उसका हरियाणा में डालते हैं, एक नंबर डाल देते हैं, लेकिन मे भी चलो विल डिस्कस इट सम मोमेंट ऑफ टाइम। पैन बेस्ड है वो अपना नहीं, पेन बेस्ड है, लेकिन उसमें पहली 2 डिजिट ना जब हम रजिस्ट्रेशन पे आएंगे इस इशू को डिस्कस करेंगे। तो फिर वो उससे उठाएगा ना सारी हैं? बाइफरकेट तो करेगा कहीं ना कहीं। बट एक चीज क्लियर है, तो एक ही दे रहे हैं वो GST। एक चीज क्लियर है कि अगर एक स्टेट में अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको सेंट्रल में अलग लेना है और स्टेट में अलग लेना है। दोनों अथॉरिटीज अलग अलग होंगी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए। नंबर सेम होगा मेरे हिसाब से नहीं होगा, वी विल सी इन अ टाइम्स टू कम। सर प्रोविजनल आईडी तो एक ही मिल रहा है, अगर मैं वैट में हूँ, सीएसटी में भी हूँ, दिल्ली में हूँ सपोज, हाँ जी, सीएसटी भी ले रखा है, दिल्ली वैट भी ले रखा है, तो जब नहीं उनको सर, CST खत्म हो गया, CST को भूल जाओ। अब आप बात करो एक्साइज का, सर्विस टैक्स का और वेट का, तो यानी कि दोनों का अलग रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ, हेलो सर, चलो करता हूँ, मुझे कोई भी एक यूनिक आईडी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं उसमें अगर उसको बिल्कुल अगर कोई दूसरा बंदा अगर सेम आईडी लेता दे कहाँ रहा है GSTN नहीं देगा उसको। नहीं एक्चुअली क्या है कि अगर मैंने एक आईडी ले ली सर राजेश गुप्ता, तो कोई दूसरा बंदा उसको राजेश गुप्ता आईडी ले ही नहीं पा रहा ना। तो इसलिए जैसे मैंने वैट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसमें आईडी ले ली राजेश गुप्ता, अगर मैं सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ तो राजेश गुप्ता आईडी देगा ही नहीं वो। और एट द टाइम वो फाइलिंग द सर्विस टैक्स रिटर्न, अब वो आपको मांग रहा है इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यू हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, मैं वहां पे अपनी आईडी दे देता हूँ राजेश गुप्ता, जो विच आई हैव ऑब्टेन्ड इन वैट, तो सफिशिएंट है वो। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, क्योंकि अभी कुछ लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये सब इनकी गुंडागर्दी चल रही है जो भी चल रही है। मतलब अभी तो थोड़ी बहुत तो हम भी कर सकते हैं ना सर फिर। अभी व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट हैपनिंग एज पर द लॉ। वो जो अभी जो बाद में GST के बारे में आएंगे वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एक जो होगा वो सेंट्रल GST के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, अगर एक SSE एक स्टेट में होगा और उसका एक चाहे हो सकता है नंबर क्या हो क्या नहीं हो, विल सी एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होंगे। वो चार्ज भी ऐसे ही करेगा, हाँ 15 डिजिट कोड में उसी में शामिल है। डिफाइन किया है, पहले 2 डिजिट विल स्पेसिफाई State द के लिए, स्टेट, देन द नेक्स्ट 11 डिजिट विल बी द पेन पेन नंबर नंबर एंड देन द एक डिजिट खाली छोड़िए और फिर आगे उसको चेक डिजिट डाला है। दे विल हैव एन मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई। we'll discuss at the time of when we'll discuss registration. So friends, registration के लिए माइग्रेशन ये है। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में जो डाटा आपने फीड किया है, यू हैव गॉट द नंबर, हाँ तो क्या रजिस्ट्रेशन आपके पास हो गया है, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है, तो क्या ये चीजें इसका डाटा मॉडिफाई भी हो सकता है, आप एडिट भी करा सकते हो बाद में? देखो सर अभी जो भी कुछ हो रहा है मे बी यू हैव एडिट फॉर अभी- सर्विस टैक्स एंड यू अभी- लेटर वांट टू अभी- ऐड ऑन दिस लोकल सेल टैक्स आल्सो। सर अभी जो भी कुछ हो रहा है हाँ। ये एनरोलमेंट हो रहा है, दे आर कंप्लीटिंग द मास्टर डाटा डिटेल्स ऑफ द SSE ओनली। ओके, तो जब वो बाद में जब GSTN काम करेगा तो उस माइग्रेशन को ये GSTN में लेके जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फिर अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। नहीं, दे विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई द थिंग्स। डेफिनेटली दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है कि एक बेसिकली एक ट्रांजिशन को एक प्लान कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी मास्टर डाटा कलेक्ट करने के लिए। अभी कहीं भी आप GSTN में नहीं जा रहे, अभी आप लोकल साइट्स पे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी लोकल सिस्टम है GSTN में, यू आर नॉट एंटरिंग इनटू द GSTN। सो रजिस्ट्रेशन से आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक लास्ट। अभी जो माइग्रेशन के लिए प्रोविजनल आईडीज मिल रही है, जैसे किसी क्लाइंट का नंबर सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है और सर्व टैक्स में रजिस्टर्ड है, उन दोनों की इवन आईडीज भी सेम आ रही है। सर अभी जो हो रहा है बेसिकली दे आर जस्ट कंपाइलिंग द मास्टर डाटा, कहीं भी अभी तो कंपाइल कर लें, अभी तो एक ही जगह फाइल हो रहा है ना जहां खाली। मर्जी कर लें, कंपाइल कहीं भी कर लें,
लेकिन जब आप जीएसटीएन में जाओगे तो जीएसटीएन में हर स्टेट के लिए अलग और हर स्टेट में 2 नंबर, और हर स्टेट में जहां भी जाओगे अलग अलग। और ये जो ARN नंबर जनरेट हो रहा है और ये PRC बोथ आर द डिफरेंट थिंग ना। कौन सा ARN नंबर जो जनरेट हो रहा है अभी, दैट्स द कंफर्मेशन कि हमने सर? माइग्रेट कर ये लिया। वो आपकी हेल्प डेस्क बताएगी, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं ऐसा। PRC अभी इशू होने शुरू नहीं हुए ना, आई थिंक। नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, नहीं अभी ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है, अभी शुरू नहीं हुए। नहीं अभी शुरू नहीं हुए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। जो भी हो रहा है दैट इज ओनली हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ द एनरोलमेंट एक्सरसाइज टू कंप्लीटिंग द डाटा मास्टर डाटा डिटेल्स ऑफ द एसएससी, कि जब भी वो पीआरसी शुरू करें तो इमीडिएटली उनको मास्टर डाटा डिटेल्स मिल जाएं और उसके आगे काम करना चालू कर लें। ठीक है सर। तो सर पहला ट्रांजिशन प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, दूसरा ट्रांजिशन प्रोविजन रिलेटेड है कैरी फॉरवर्ड ऑफ गुड्स, कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेंडवेट क्रेडिट, वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूडिंग एंट्री टैक्स। सर कैरी फॉरवर्ड कब होगा? कैरी फॉरवर्ड ऑफ क्रेडिट तब होगा कि जब आप प्रेजेंट में रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो और गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी में भी आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन बन के जाओगे। 2 कंडीशन क्लियर है कि भाई कैरी फॉरवर्ड के लिए आप प्रेजेंट में भी टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे सेंट्रल एक्ट में हो यानी कि सर्विस टैक्स में या इस एक्साइज में या वैट में हो, और फ्यूचर में जब जीएसटी में जाएंगे तब भी आप टैक्सेबल रहोगे। तो उनके केस में जब दोनों केसेस में कैरी मतलब दोनों केसेस में टैक्सेबल है तो वहां क्या होना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड, कि जितने इनपुट क्रेडिट्स आईटीसीज आपके एलिजिबल हैं आज की डेट में, वो एलिजिबल क्रेडिट शुड बी कैरी फॉरवर्ड। कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट? जो आपके स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में एम्बेडेड हैं या जिनको आप फुली क्लेम नहीं कर पाए हो, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। जैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं तो जैसे ही मेरे पास गुड्स आता है तो मैं उसका क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं। मान लो मैं एक परचेज करता हूं 1 लाख रुपए की, और जैसे ही मैंने परचेज की उसमें 10,000 रुपीज टैक्स है, और जब परचेज की तो मैंने उसको 50,000 को बेच दिया फर्दर, मेरे पास 50,000 बच गया, तो 50,000 फर्दर बेचा तो जो मेरा आधा क्रेडिट था वो तो मैंने एडजस्ट कर लिया, सेटअप कर लिया। तो जो बचा हुआ जो आइटम है जो स्टॉक में है वो मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है ना? One thing there, if I have made purchase previously, and VAT I have charged on that, and I am adjusting against the present purchase, then how that amount can be carried forward? दोबारा बोलें सर, दोबारा। सर मैंने पहले एक सामान पहले खरीद रखा, हाँ वो मेरा 50% यूज हुआ, 50% पड़ा हुआ है, हाँ जी। उसके अगेंस्ट वैट का इनपुट मैंने ले लिया, हाँ जी। अगली मेरी सेल हुई 50% हुई, 50% पड़ा, जो मैंने और माल बेचा पिछला जो मेरा इनपुट क्रेडिट है वो तो उसमें कंज्यूम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें तो फिर वैट का कोई मतलब नहीं हुआ ना जी। नहीं सर, ऐसा है ना, जो फीफो मेथड पे, जैसे अगर मैं आपकी एक परचेज कर रहा हूँ उसको 2 परचेज कर देते हैं। जैसे एक परचेज थी आपकी मानो 1 लाख रुपीज की जिसपे 10,000 टैक्स था, दूसरी परचेज थी आपकी अगेन 1 लाख रुपीज, अगेन 150 मतलब 1.5 लाख रुपए की जिसपे 10% 15,000 टैक्स था। तो मेरा अगर मेरा कुछ भी नहीं बिका तो मेरे को 25% टैक्स है और 2.5 लाख का गुड्स मेरे पास है। ठीक है, अगर हम इस 2.5 लाख के गुड्स में से 1 लाख का गुड्स 1.5 लाख में बेच देता हूं मैं, मतलब 50 लाख रुपए में 50,000 रुपए मार्जिन लेके, तो मेरे को 1.5 लाख का गुड्स बच गया जिसमें मेरा 10,000 15,000 रुपए क्रेडिट है जो मेरे पास स्टॉक में एम्बेडेड है। और ऐसा वो तो मेरे इनपुट क्रेडिट में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, कैरी फॉरवर्ड करूंगा मैं, हाँ जो, कैरी फॉरवर्ड की वो बता तो रहा उसमें हूँ। पड़ा हुआ है ना, वो फिर स्टॉक का तो इसके साथ मतलब कुछ नहीं हुआ ना। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, बुक्स जो बुक्स में पड़ा है जिसको रिटर्न में मैं ले जाके कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और वही मैं कह रहा हूं कि वो जो बुक्स में पड़ा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। ठीक, जो आपने क्लेम करके एडजस्ट कर लिया वो खत्म हो गया। मेरा जो उस अकाउंट पे बैलेंस आ रहा है मैंने वही कैरी फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल स्टॉक का तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर का अगर हम केस लेते हैं कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है वो इनपुट क्रेडिट ले रहा है अपनी सर्विसेज पे और एक्साइज का भी अगर इनपुट क्रेडिट ले रहा है वो, तो आउटपुट टैक्स उसका कम होता है, इनपुट टैक्स है वो ज्यादा है, तो जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा क्योंकि उसकी चीजें आगे टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन बिल्कुल सिंपल है कि अगर पहली कंडीशन ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ में है वो भी टैक्सेबल एसएससी है,
चार्जेबल टू टैक्स है, और जो जब फ्यूचर में लेके जाएगा जीएसटी में जाएगा वो भी टैक्सेबल पर्सन होगा, एंड गुड्स आर चार्जेबल, जीएसटी चार्जेबल ऑन इट। सर इसको कैरी फॉरवर्ड कब करना होगा? 1 जुलाई को करना होगा या बाद में भी हो सकता है? इसके लिए हम एक डेट वैसी छोड़ देते हैं। अगर 1 जुलाई को अगर हम अपॉइंटेड डेट मानते हैं, अगर हम ये जो भी डिस्कशन करेंगे ये मान के करेंगे कि 1 जुलाई को हम जीएसटी में आ जाएंगे, तो जो रिटर्न हम अपनी फाइल करेंगे अप टू 30 जून 2017, उस रिटर्न में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट